Now, this video is going to be all about polygons. We would not be delving into specific types of polygons, but this video would just give you an overview of polygons, and we would be discussing the general properties that would, of course, apply to all the polygons. And about the specific types of polygons, we would discuss them in a later video. Now, let us start with the name polygons. Polygon, as the name suggests, poly का क्या मतलब होता है many, and gon implies angle or corner. So polygon is literally a shape with many angles or corners. ठीक है? Now let's see what does the definition say. According to the definition, a polygon is a closed geometric figure. Closed figure कौन सा होता है जिसकी कोई open ending ना हो. Now this figure is not a closed geometric figure. इसको close करने के लिए, in order to make this a closed geometric figure, we'll have to combine it. Now since this figure has got no open endings, so this is our closed geometric figure. ठीक है? And then it says it is made up of line segments. अब line segments क्या होती हैं? This is your line AB. These arrows suggest that दोनों साइडों से it goes on and on and on and on. ठीक है? तो ये रुकती नहीं है. लेकिन line segment is a portion of the line that has two end points. तो दो end points अगर हम यहाँ पे consider कर लें, now BD is a line segment. यानी कि यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक line जो है वो चलती जाती है. तो a polygon is a closed geometric figure that is made up of line segments. अब मैं कोई भी क्लोज फिगर कंसिडर कर लेती हूँ. This is a polygon because it meets all the requirements. It is a closed geometric figure. It is made up of line segments. ठीक है? Alright. Next it says the line segments are called the sides. अब ये वाली जो line segments हैं ये सारी, इनको we call sides. Or these can be called edges. ठीक है? और फिर and the end points of the line segments are called vertices. अब ये जो end points हैं इनको हम लोग vertices भी कहते हैं. ठीक है? Individually this is a vertex, this is a vertex, this is a vertex, and this is a vertex. And another thing to note is that a polygon is a two-dimensional shape. ठीक है? Two-dimensional shape is a plane figure that can be drawn on a flat surface. अब हमारे पास सिर्फ दो dimensions होती हैं इसकी, या तो आपके पास length है या आपके पास width है. ठीक है? और इसकी जो होती है कोई thickness नहीं होती, कोई depth नहीं होती. So some of the basic 2D shapes जो हमें पता है, जिनकी rectangle हो गया, pentagon हो गया, circle, triangles. So these all are the two-dimensional shapes, जिनकी सिर्फ दो dimensions है, length and width. Next we have adjacent and non-adjacent vertices. This concept would help you understanding the diagonals. ठीक है? तो adjacent vertex कौन सा होता है? It is a vertex that is connected directly by a side. ठीक है? अब अगर ये आपका vertex A है और let's name this P, this C and this D. ठीक है? तो कौन कौन सा वर्टेक्स है जो ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली बाय अ साइड? इट्स द वर्टेक्स बी. देयर इज अ साइड दैट इज कनेक्टिंग ए एंड बी, जस्ट वन साइड, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है. एंड सिमिलरली ए एंड डी आर डायरेक्टली कनेक्टेड बाय अ साइड. तो these two, A and B, are adjacent vertices. Similarly, A and D are adjacent vertices. Next, we have non-adjacent vertices. Non-adjacent vertices in a polygon are vertices that are not directly connected by a side. If we consider this, the vertex C, how is A connected to C? Do you see any direct relationship between A and C? First, A is connected to B. ठीक है? A B को से connected है, और उसके बाद बी सी से कनेक्टेड है. ए इज़ नॉट कनेक्टेड टू सी बाय अ डायरेक्ट साइड. तो ए एंड सी आर नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस. सिमिलरली अगर हम डी को कंसिडर करें, तो इवन दो ए और डी जो हैं, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय डायरेक्टली बाय साइड, तो ए एंड डी आर द एडजेसेंट वर्टिसेस. सिमिलरली सी एंड डी आर द एडजेसेंट वर्टिसेस, बट बी एंड डी आर नॉट द एडजेसेंट वर्टिसेस, क्योंकि इनके दरम्यान में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. ठीक है? दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड बाय एनी साइड. So these would be the non-adjacent vertices.
Then we have diagonals. Now line segments inside the polygon drawn from one vertex to another, they're called diagonals. अब जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस का, दैट वुड बी अप्लाइड हियर. डायगोनल्स आर द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस. ठीक है. अब A और B जो है, these are the adjacent vertices because they are directly connected by a side. Similarly, A and D are adjacent vertices. अब non adjacent vertices कौन कौन से हैं? A और C और B और D. These two are the non adjacent vertices. तो diagonal जो होगा वो एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो कि non adjacent vertices को कनेक्ट करती है. तो एक diagonal तो हमारे पास बन जाएगा AC और दूसरा diagonal हो जाएगा BD. तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप ए बी को डायगनल काउंट नहीं कर रहे. सिमिलरली बी सी को डायगनल नहीं कंसिडर कर रहे, सी डी को भी नहीं डायगनल कंसिडर कर सकते और ए डी को भी नहीं. सो द साइड्स देमसेल्व्स दे आर नॉट काउंटेड एज डायगनल्स. आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ डायगनल्स इज क्लियर नाउ. Then the simplest polygons which have three sides are the triangles. A triangle is considered a polygon because it meets the definition of a polygon. It's a closed figure. ये consider कर लें. It is a closed figure. Yes, it is a closed figure. Then it is two-dimensional as well with straight sides. Specifically, a triangle has three sides and three angles. ठीक है. Three sides and three angles are making it the simplest form of polygons. And then we have polygon with four sides is called a quadrilateral. अब quadrilateral जो है, as the name says, quad का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है four. और lateral का क्या मतलब होता है? Lateral means sides. तो quadrilateral basically literally means four sides. ठीक है. A polygon with four sides we call it quadrilateral. उसके बाद हमें जिन quadrilaterals का पता होना चाहिए, the only terms that you need to be familiar with, वो है pentagon. Pentagon जो है इसकी 5 sides होती हैं. ठीक है. This is a pentagon. Then hexagon. Hexagon is a polygon with 6 sides. Then heptagon. Heptagon की 7 sides हैं. Then octagon, इसकी 8 sides हैं. Nonagon, this is a nonagon, it has 9 sides. And then decagon, it has 10 sides. So these are the only terms that you need to be familiar with when it comes to polygons. Then we have another very important point that says in any quadrilateral, the sum of the measures of the four angles is 360. तो quadrilateral में आपकी पहले तो हमें एक let us consider this. ठीक है. ये हमारे पास एक 4-sided polygon है जिसको हम quadrilateral कहते हैं. ठीक है. अब इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इन सब को आप ऐड करें तो यू गेट 360. ठीक है. जैसे हम लोगों ने ट्राइंगल्स की बात की थी, इसके इंटीरियर एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो वी गेट 180. तो in the case of quadrilaterals, by adding up all the interior angles, we get 360. So no matter what the shape of quadrilateral is, it can be a square, it can be a rectangle, it can be a trapezoid, parallelogram, rhombus, whatsoever. The sum of its interior angles will always be 360 degrees, given that it has 4 vertices and 4 sides, of course, because it's a quadrilateral. Next, we have another key concept here that says any polygon can be divided into triangles by drawing in all of the diagonals emanating from one vertex. So let's see, what does it say? This is a polygon, it's a 4-sided polygon and a quadrilateral, of course. तो अब हम किसी एक वर्टेक्स से कितने पॉसिबल डायगनल ड्रॉ कर सकते हैं? मैं एक ही डायगनल ड्रॉ कर सकती हूँ क्योंकि ये जो है ओनली दिस वर्टेक्स इज अ नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स टू दिस वर्टेक्स. ठीक है. तो हम सिर्फ एक डायगनल ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ दिस डायगनल हैज़ डिवाइडेड दिस क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्राइंगल्स. The next sentence says an n-sided polygon is divided into n-2 triangles. तो अगर हम इसको चेक करें, हमारे पास एक 4-sided polygon था. So has this 4-sided polygon been divided into 2 triangles? 4 - 2 है ना, इसके अकॉर्डिंग 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करना चाहिए. Yes, it has divided. This diagonal has divided this quadrilateral in 2
ट्राइंगल्स, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कोई और कंसिडर कर लें, लेट अस कंसिडर अ 5-sided polygon, ठीक है, which is called a pentagon। तो अब किसी भी मैं एक वर्टेक्स को चूज करती हूँ और हम उससे जो है डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से मैं कर सकती हूँ, नो, यहाँ से डायगोनल, दिस इज़ नॉट अ डायगोनल, दिस इज़ नॉट अ डायगोनल। तो हम लोग नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस के साथ एक तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं और एक यहाँ पे कर सकते हैं। तो नाउ these two diagonals have divided this pentagon in 3 triangles, triangle 1, 2, 3। तो let's see if this formula works here। हमारे पास था 5-sided polygon, ठीक है। तो let's see if we've divided it into 5 minus 2 triangles। 5 minus 2 gives us 3, and yes, we've divided this pentagon into 3 triangles। So this formula works for all the polygons। अगर आपके पास 7-sided polygon है तो 7 minus 2 5 triangles में वो divide हो जाएगा। Next, we have another concept that says the sum of the measures of the n angles in a polygon with n sides is 180 into n minus 2। अब let us start with the simplest polygon। हम लोगों ने पहले क्या डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और इसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं, if this is x, if this is y, this is z, upon adding these interior angles we get 180। अब ये फॉर्मूला इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब लेट्स चेक इफ इट वर्क्स। अब फॉर्मूला क्या है, 180 इंटू एन माइनस 2। ट्राइंगल में एन की जगह आप रिप्लेस कर देंगे 3 को, 180 इंटू 3 minus 2, that is 1। this gives us 180। so it works for a triangle। Now let's see if it works for other polygons। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में जब भी हम सारी साइड्स को सारे एंगल्स को ऐड करते हैं वी गेट 360, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स को। तो यहाँ पे हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये एंगल्स एक्स वाई जी, एक्स प्लस वाई प्लस सी plus w must give us 360। so if we apply this formula here, हमारे पास कितनी sides हैं इस quadrilateral है, since it's a quadrilateral will have 4 sides। तो इसका क्या मतलब है कि 4 minus 2 gives us 2, 180 into 2 gives us 360। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपका कोई भी पॉलीगॉन होगा, एंड इफ़ यू वांट टू डिटरमिन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। आपके पास अगर 5-sided पॉलीगॉन है तो आप 5 n को 5 से रिप्लेस कर लेंगे, 6-sided पॉलीगॉन है तो n को 6 से रिप्लेस कर लेंगे, और इवेंचुअली हमारे पास जितने भी ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं उनका आपको सम मिल जाएगा। And then again we have another very important point that says if you add the measures of all exterior angles in any of the polygons the sums are equal 360। अब ट्राइंगल को तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जो भी आपके एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं किसी भी साइड को एक्सटेंड करने से तो यू ऑलवेज एंड अप गेटिंग 360 इन सब एंगल्स को ऐड करें। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि आपके पास कोई भी पॉलीगॉन हो, किसी भी तरह का, कितनी भी साइड्स हो आपके पास, हमारा जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स आएंगे ना किसी साइड को एक्सटेंड करने से वो सारे दे वुड ऐड अप टू 360। कोई भी कितनी भी साइडेड पॉलीगॉन है हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा 360 के इक्वल आएंगे। इंटीरियर एंगल्स डिफरेंट होते हैं, ये जो अंदर वाले एंगल्स हैं दे वुड बी डिफरेंट ऑफ कोर्स, लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे इनका सम हमेशा 360 होगा। अब पॉलीगॉन्स की एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स, ठीक है। अ रेगुलर पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन इन विच ऑल द साइड्स आर द सेम लेंथ एंड ईच एंगल हैज़ अ सेम मेजर। अब नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास कोई एक पॉलीगॉन है, ठीक है, हमारे पास लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज ई, और ये आपकी साइड्स हो। अब इस पॉलीगॉन को अगर आपने रेगुलर पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना है तो दैट इम्प्लाइज कि अगर आपका ये एंगल इसका मेजर एक्स है
तो इसका भी मेजर x होगा, ये भी x होगा। और अगर आपकी ये साइड a है तो ये साइड भी a होगी, ये भी साइड a होगी। यानी कि वो कोई ऐसा पॉलीगॉन, चाहे आप कोई क्वाड्रिलेटरल कंसिडर करें, पेंटागन है, कोई भी पॉलीगॉन है, ठीक है, आपके इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो सारे के सारे एंगल सेम हो, और जो हमारी साइड्स हैं वो साइड्स भी सेम होनी चाहिए, एंड ओनली देन दैट पॉलीगॉन वुड बी कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगॉन। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट सेज मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज दिस। अब हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जब आप सारे इंटीरियर एंगल्स को ऐड करते हैं तो उनका सम होता है इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो हम लोगों ने एक फॉर्मूला से फाइंड किया था, वो था 180 इंटू n-2। तो ये फॉर्मूला जब भी आप n की वैल्यूज चेंज करते थे अकॉर्डिंगली, आपके पास उस पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल्स का हमें सम मिल जाता था। जैसे अब ये वाला अगर हम पॉलीगॉन कंसिडर करते हैं तो हमारे पास इसमें कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, ठीक है। तो 180 इंटू 3-2 दिस गिव्स अस 180, ठीक है। इसका मतलब है कि x प्लस x इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल्स का हमें सम मिल गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर आप लोगों ने, ये तो हमें सम दे रहे ना, इसका भी, इसका भी, इसका भी, लेकिन अगर आपने इंडिविजुअल एक इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, लेट्स से हमने ये वाला फाइंड करना है, तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये इसमें सिंपली ये हुआ है कि जो हमारा प्रीवियस फार्मूला था 180 इंटू n-2, हम लोगों ने सिंपली इसको n से डिवाइड कर दिया। और n से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि इस पॉलीगॉन में आपकी सारी साइड्स सेम है, ठीक है। तो अगर आप इन इंटीरियर एंगल्स के सम को इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं देन यू वुड हैव टू डिवाइड इट बाय n। अब जैसे हमारे पास आया है x प्लस x इज इक्वल टू 180, दिस गिव्स अस 3x इज इक्वल टू 180, और यहाँ से x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई की है, और यहाँ से आपके पास इसका इंडिविजुअल जो है आपके पास इंटीरियर एंगल आ गया, ठीक है। यानी x इज इक्वल टू 60। अब आपके पास ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। और अगर आपको कुछ याद हो तो अब 60 के एंगल वाले पॉलीगॉन को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें सारी साइड्स भी सेम हो और सारी एंगल्स भी सेम हो, एंड देन यू कैन कॉल एन इक्विलेटरल ट्राइंगल अ रेगुलर पॉलीगॉन बिकॉज इट मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। इसी तरह से अब अगर हम लोग ये कंसिडर करते हैं, ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब अगर ये रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसका मतलब है इफ दिस इज x तो दिस हैज़ टू बी x, दिस हैज़ टू बी x, दिस हैज़ टू बी x, और ये साइड्स आपकी सेम होगी। तो प्रीवियस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इन सब इंटीरियर एंगल्स का जो सम है दैट मस्ट बी इक्वल टू 180 इंटू n-2, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, सिर्फ ये वाला, या फिर इनको आप लोगों ने अलहदा अलहदा फाइंड करना है। अभी तो हमारे पास सम है लेकिन हमें सेपरेटली इनकी वैल्यूज चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो आई गेट 4x, और n हमारे पास क्या है 4, 180, 4 - 2 gives you 2, 4x इज इक्वल टू 360 एंड x इज इक्वल टू 90। तो अब हमारे पास इस इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई 90, इस इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई 90, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। तो आप सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करें। अगर आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है तो उसका मतलब है कि आपने अगर सम फाइंड करना है तो यू गो विद दिस फॉर्मूला 180 n-2। और अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो अगर आपने सम फाइंड करना है तो यही फॉर्मूला यूज़ होगा, लेकिन अगर आपने सेपरेटली इंटीरियर एंगल्स फाइंड करना है तो ओनली यूड हैव टू डिवाइड दिस बाय n। लेकिन ये फॉर्मूला इट ओनली अप्लाइज टू रेगुलर पॉलीगॉन्स, ठीक है। बाकी पॉलीगॉन्स जिसमें आपकी डिफरेंट एंगल्स के मेजर्स डिफरेंट होते हैं, साइड्स डिफरेंट होती हैं, देन वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड द इंटीरियर एंगल्स। उसके लिए कोई और मेथड होगा या किसी और तरीके से विल सॉल्व इट।